Mitali. Okay, I hope so. My voice is clear. So I am going to present now regarding network security. Okay, I hope so. My screen is visible, right? Yes, Ankit. Okay, okay. Right. So for the convenience, we are conducting this session in Hindi and English so that everyone can understand very easily. And you can put your feedback into the chat box so that Jigar bhai can come to know what's your problems are, right? So we can handle it at the end of the Q&A session, right? Yeah. So basically, this was our title, a network security basics, organized by Department of Computer Engineering and Information Technology, Ganpati University, BS Patel Polytechnic, and Institute of Technology. So let me just remind you what is network and why we need it. Basically, the answer for this question is due to the network facility that we are having nowadays, by means of which we are able to communicate now. अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इसके लिए ही कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की फैसिलिटी हमारे पास है, राइट? नेटवर्क हमारे पास है इसीलिए हम लोग ये कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो नेटवर्क इज दैट मच इम्पॉर्टेंट. Okay, it's kind of, it works like an infrastructure which provides us the facility so that everyone can share information, can communicate with one another, right? This was the objective is for a network. So over a period of time, जैसे हम लोगों को सबको पता है, जैसे जैसे कोई चीज का इनोवेशन बढ़ता है वैसे वैसे दो टाइप के बंदे रहते हैं, दो टाइप के इंडिविजुअल्स रहते हैं. एक होता है जिनका माइंड एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव वे में प्रोसेस करता है, दूसरे बंदे होते हैं जिनका काम ही होता है किसी चीज को बिगाड़ना या इन जनरल सेंस वी कैन से टांग अड़ाना. सो वो पर्सन का ऑब्जेक्टिव वही होता है कि सामने वाले को मैं इस मीडियम से कैसे उसको हार्म पहुंचाऊं, वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है. सो ऐसे बंदे जनरली होता है इनका इंटेंशन मैलिशियस होता है या बैड इंटेंशन होता है दूसरे यूजर्स के लिए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी और का इंफॉर्मेशन, किसी और का डेटा या किसी और का मनी बाय एनी मींस वो चुरा ले. सो अभी हम लोग सभी जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, हम जो भी चीजें मंगवा रहे हैं 90% ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, हम कुछ भी बाय कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट? सो मे बी पॉसिबल कि जो आपका मनी है वो भी अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कम्युनिकेट हो रहा है या ट्रैवल हो रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि जो थीफ्स है वो ऑनलाइन आपके डेटा चोरी करने या मनी चोरी करने का ट्राई करे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस व्हाई वी नीड सिक्योरिटी ओवर द नेटवर्क. I hope so you are getting my point why we need security over the network. So this is basically, Jigar bhai, you can admit, if you are able to admit, so please you can admit the students. Yeah, so these all are the contents that I am supposed to deliver. Ankit bhai, sorry to disturb you, but someone has presented his screen. Your screen is not visible. Okay. ओके भास्कर सर प्लीज चेक, हाँ कोई बीच में स्क्रीन ना प्रेजेंट कर दे. ओके. सो आज के जो कंटेंट में डिलीवर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी क्या है वो पॉइंट मैं आपसे क्लियर करवाऊंगा. पहला ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा. सेकंड,
Then what are the possible threats to the security? What do you mean by with threats? Basically a danger to the security. So we are classifying those threats to the security in later session, and then we come across the main basics of the security. Why we need these kind of fundamentals, we will going to see, and then we can see authentication mechanism, and at the end the approaches we are going to learn. So this is how I'm going to conduct this session throughout this 1 hour. So yeah, what is security? सिक्योरिटी का जनरल सेंस अगर आप और मैं अभी बोलना चाहे, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट दिस टॉपिक, अपने को कुछ नहीं पता है, बट अपने ये वर्ड देखे ना कि सिक्योरिटी, सो वी हैव सम सेंस कि सिक्योरिटी क्या है. हम ऑनलाइन अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो इतने यूजर है उनके बीच में ही रहे. फर्स्ट थिंग, अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि अपना जो डेटा है वो प्राइवेट रहे, डेटा की प्राइवेसी रहे, कोई और हमारा डेटा रीड ना कर पाए. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा. सेकंड चीज, हम जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हम लोग अभी फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल मंगवा दिया, क्रेडिट कार्ड से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं. सोचिए मोबाइल की कीमत 15,000 रुपया है और हमारे अकाउंट में से 20,000 रुपीज कट रहे हैं. मीन्स व्हाट, समवन इज मॉडिफाइड दैट परचेज अमाउंट. और हमको वो नहीं चाहिए कि नेटवर्क में कोई हमारी इंफॉर्मेशन डेटा मॉडिफाई नहीं करना चाहिए. ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा. फर्स्ट मैंने और एक चीज बोली, हमारा डेटा प्राइवेट रहना चाहिए, मतलब डेटा की प्राइवेसी होनी चाहिए. सो सोचिए अगर जो आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल रहे हो, मतलब आपका खुद का नाम डाल रहे हो, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल रहे हो, सीवीवी नंबर डाल रहे हो, उसका एक्सपायरी डेट डाल रहे हो, जो भी वगैरह इंफॉर्मेशन आप खुद की प्राइवेट इंफॉर्मेशन डाल रहे हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, सोचो वो आपके अलावा कोई और बंदा नेटवर्क में उसको रीड कर ले, कैप्चर कर ले, सो आपके जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी चली जाएगी. दिस इज हाउ अटैक्स कैन पॉसिबल. सो हमको ये चीज नहीं चाहिए कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी ब्रेक करे. सो 2 पॉइंट क्लियर करे हमने. फर्स्ट पॉइंट, हमारा डेटा का प्राइवेट रहना बहुत ही जरूरी है. हमारा डेटा का मॉडिफिकेशन कोई भी अनऑथोराइज पार्टी, कोई बैड पर्सन नहीं करना चाहिए. सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई. थर्ड चीज, अगर वो डेटा हमारा है, अगर वो डेटा हमारा है तो वो डेटा हमको 24/7 24 कलाक गुणा 7 दिवस, मतलब कि हर हमेश अपने को मिलना चाहिए. ये थर्ड रिक्वायरमेंट हो गई. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहे, डेटा की प्राइवेसी रहनी चाहिए, हमारा इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं होना चाहिए अनऑथोराइज वे में, एंड थर्ड, हमारा डेटा अवेलेबल रहना चाहिए 24/7. इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, सोचिए आज अभी हर बच्चा, हर पेरेंट्स अपने डेटा या अपना कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या ऑल सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट हम अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं फॉर अ सेफ्टी रीजन, कि अगर जब भी कभी भी कोई फैकल्टी या कभी भी कोई भी जगह हमको वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े तो हम डाउनलोड कर सके, उनको व्हाट्सअप कर सके. सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. बट सोचिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आप कहीं पे फंसे हो और इसी लॉकडाउन के दौरान आपका गूगल ड्राइव आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. मींस आप अपना डेटा अवेलेबल नहीं कर पा रहे हो, आपका डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास. इट इज अ काइंड ऑफ अटैक और इट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच. वो सिक्योरिटी आपकी चली गई, यू कैन से. 3 फंडामेंटल अभी मैं आपको क्लियर करवाया. फर्स्ट इज अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, पर्सनल रहनी चाहिए. क्यों? सोचिए अगर मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड नंबर कोई रीड कर लेगा, कोई इंफॉर्मेशन ले लेगा, ही कैन यूज अवर क्रेडिट कार्ड. फर्स्ट पॉइंट इज दैट. सो डेटा की प्राइवेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. सेकेंड चीज,
डेटा का मॉडिफिकेशन अनऑथोराइज वे में नहीं होना चाहिए। मतलब 15,000 हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में से 20,000 डेबिट नहीं होने चाहिए, कोई मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। थर्ड, अगर हम लोग वो डेटा के लिए जेन्युइन पर्सन है, मतलब वो डेटा हमारा है, तो वो डेटा हमको 24/7 मिलना चाहिए। नाउ इतनी चीज अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हो एकदम सक्सेसफुली, so now you can define the security. Let's define it. So what I am trying to convey is the protection of information. We are dealing with the technical words now. The protection of information system from, हमको प्रोटेक्शन करना है किसका? इंफॉर्मेशन सिस्टम में। किसके? अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। सेकंड, उसका यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड, डिस्क्लोजर, मतलब कोई बंदा हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को मार्केट में डिस्क्लोज ना कर दे, वो भी एक कंसर्न है हमारा। नेक्स्ट, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब का मतलब आप मॉडिफाई ले लो, डिलीट ले लो, डिस्ट्रक्ट ले लो, कुछ भी वर्ड आप ले सकते हो जो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। इन ऑर्डर टू, मतलब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वाई वी नीड इट? सो ये जो है वो पंच लाइन है हमारी। अंकित भाई स्क्रीन फिर से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। It is too hectic, too hectic. Dear student, please, if you are cooperate with me, हमको ये पूरा सेशन स्मूथली कंडक्ट करने में बहुत ही मजा आएगा। बट अगर हम लोग इसमें बिजी रहे कि स्ट्रिंग वापस से प्रेजेंट करते जाओ, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सर्व नहीं होगा। सर, वी हैव अनदर ऑप्शन दैट जूम या कोई और एप्लीकेशन हम यूज कर पाए नेक्स्ट टाइम से, सो इट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट देन No दिस। problem. Next time I will manage with the Zoom. We will do in Zoom next time. यस सर, थैंक यू। ओके, सो अब एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन अगर हम क्लियरली लेना चाहे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हमको ये तीन चीजें चाहिए। कौन सी? टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स व्हाट? डेटा की प्राइवेसी रहनी चाहिए। सेकंड, इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन इंटीग्रिटी? डेटा अनऑथोराइज्ड में मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। सोचिए अगर आज आप ये सेमिनार को आप एकदम सीरियसली लेना चाह रहे हो, और फॉरगेट अबाउट दिस सेमिनार, आपके 10th की फाइनल एग्जाम है, गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि वो एग्जाम ऑनलाइन ले गए, यू आर द जेन्युइन यूजर, क्योंकि आप 10th के बच्चे हो, आपको एग्जाम देनी ही देनी है। बट समहाउ some person attack the GSCB server and you are not able to give the examination, then what? It is a kind of attack. It is kind of security breaks, right? So before diving into the security subject, we must differentiate these 4 small fundamentals. ये 4 जो बहुत ही बारीक डिफरेंस है ये सभी में, वो हमको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। Let's try to differentiate that. See, as we all know, अगर आपके घर में कोई चोर चोरी करने आए, वो कैसे डायरेक्टली आ जाएगा अपना आधार कार्ड लेके कि मुझे चोरी करनी है? वो ऐसे नहीं आएगा। वो क्या करेगा? 2-4 दिन या 5-7 दिन पहले आपके घर में, आपकी सोसाइटी में आजू बाजू घूमेगा, देन आपके घर में वीक पॉइंट क्या है वो फाइंड करेगा, और देन दे कैन अटैक दैट थिंग। और वो वीक पॉइंट का यूटिलाइज करके ही आपके घर में घुसेगा, और वही वीक पॉइंट का यूज करके आपके घर से बाहर भागेगा। क्योंकि उसको 2 चीज चाहिए, आपके घर में घुसना भी है, चोरी भी करनी है, और चोरी सक्सेसफुल हो जानी चाहिए, और चोरी हो जाने के बाद उसको बाहर जाने का रास्ता भी इजीली मिल जाना चाहिए, तब जाके वो बंदा सक्सेसफुल होगा अपने ऑब्जेक्टिव में। सो द फर्स्ट डिटेल इज दिस, vulnerabilities. द फर्स्ट डिटेल इज दिस, vulnerabilities. vulnerabilities का मतलब क्या है? द लूप होल या वीकनेस, लूप होल या वीकनेस इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम और इन योर सिस्टम। जैसे कि अगर किसी की कंप्यूटर में घुसना है, तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो हिज आर्किटेक्चर, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वो बंदा यूज कर रहा है। सेकंड, वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, और उसके vulnerabilities मतलब के लूप होल्स एंड वीक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मैं अगर इसका आपको एग्जांपल देना चाहूँ ना, so I
I have full confidence that you are updating your Android OS every now and then. आप अपनी Android की जो भी OS है उसको आप अपडेट करते होंगे जब भी अपडेट आते हैं, और आप अपने एप्लीकेशंस को भी अपडेट करते हो, पबजी ले लो या व्हाट्सएप ले लो, ये जो भी एप्लीकेशंस है आप इसको भी अपडेट करते होंगे टाइम टू टाइम। अपडेट करते हो तो उसमें एक वर्ड लिख के आता है व्हाट इज न्यू इन दिस अपडेट, तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है दिस बग इज फिक्स्ड नाउ, ये बग था हमने फिक्स कर लिया। बग इज अ वीकनेस, अ प्रॉब्लम और अ लूप होल, तो बग फिक्स करने से वो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी बढ़ गई। दैट्स व्हाट दे मेंट, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज vulnerabilities must overcome any loopholes या weakness in your operating system to secure your system. Second thing, threat. See, every system in the world can have a possible danger code to that systems. मतलब थ्रेड क्या है? इट्स अ पॉसिबल डेंजर, इट्स अ पॉसिबल डेंजर, सी ओ हियर, इट्स अ पॉसिबल डेंजर that might exploit, that might, it's a probability that might exploit what? Vulnerabilities. For which reason? To breach the security and therefore causes a possible harm. See, now can you identify the basic difference between threat and vulnerabilities? Vulnerabilities को हमने क्या बोला? एक लूपहोल्स बोल दिया या वीक पॉइंट बोल दिया या एक होल बोल दिया जिससे कोई भी आपकी सिस्टम में इजीली पेनिट्रेट, घुस सकेगा। थ्रेट क्या है? इट्स अ पॉसिबल डेंजर जिससे आपकी सिस्टम में वो इजीली घुस पाए एंड देन ही कैन डू व्हाटएवर हार्म दैट ही माइट टारगेट। उसने जो भी हार्म टारगेट किया होगा वो हार्म करेगा। आई होप सो दिस थिंग इज समथिंग क्लियर नाउ, राइट? अब एक्सप्लॉइट, उसको एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है? वो वर्नरेबिलिटीज को यूटिलाइज करना है, दैट्स व्हाट एक्सप्लॉइट मीन। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है? द वे, एक रास्ता है, अ वे टू ब्रीच द सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी कैसे तोड़नी है या सिक्योरिटी को मैं ब्रेक करके कैसे पेनिट्रेट करना है, उसका एक रास्ता है जिसको बोलेंगे एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या? वर्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना, यूटिलाइज करना है। जैसे चोर को आपके घर में घुसना है तो उसने एक विंडो या एक छुपा रास्ता देख लिया होगा जिससे वो इजीली घुस पाएगा, और घुसने का जो वीक पॉइंट को यूटिलाइज करने का, यूज करने का वे है, उसको एक्सप्लॉइट बोलते हैं। एंड रिस्क इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट मे अकर। रिस्क का मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना मुझ पे रिस्क है, रिस्क का मतलब क्या? आप पे कोई हमला हो सकता है, उसको रिस्क बोलते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी। आई होप सो दिस बेसिक फंडामेंटल इज क्लियर। अगर इस पीपीटी से हम लोग आगे जा रहे हैं उसका मतलब आपके दिमाग में तीन चीजें क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी उसका मतलब क्या है? डेटा की प्राइवेसी रहना, डेटा, अपना डेटा प्राइवेट रहना चाहिए। कोई अनऑथोराइज पार्टी, कोई बैड पर्सन के पास वो डिटेल रीड नहीं हो जानी चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रिटी, सेकंड, इंटीग्रिटी का मतलब क्या? डेटा जैसा हम लोग सेंड कर रहे हैं वैसा ही जाना चाहिए और ऐसा ही रिसीव होना चाहिए, कोई भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी, अगर हम लोग वो इंफॉर्मेशन के लिए जेन्युइन बंदे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें हमेशा मिलनी चाहिए, वो सर्विस हमें हमेशा मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाट अवेलेबिलिटी इज। नाउ लेट्स क्लासिफाई द सिक्योरिटी थ्रेट्स। अभी हमने डिस्कस करा थ्रेट। थ्रेट क्या थे? थ्रेट क्या थे? इट्स पॉसिबल डेंजर जिससे हमारी सिस्टम में सिक्योरिटी ब्रेक करने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए, या वो जो हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रेक कर सकता है उसको हम लोग थ्रेट बोलते हैं। तो अब हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट बेसिकली दो मेन टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर्स एंड नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स का हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट्स डील विद द लाइटिंग या सुनामी या फ्लड आ गया तो मे बी पॉसिबल, अगर हमारा सर्वर वहां पे है, जैसे गणपत का सर्वर अभी महसाना में हमने डाला, ऐसा सोच लीजिए, और अगर महसाना में बहुत हैवी फ्लड आ गया, मे बी पॉसिबल पूरी
सिस्टम कोई बहा के ले गया तो मे बी पॉसिबल हमारा डेटा पूरा लॉस हो सकता है, बट दिस इज नॉट द केस, राइट? वी आर यूजिंग बैकअप्स ऑफ our data, so this is not a big issue. Big issue lies in the human factor. अब human factors क्या है वो हमको अंडरस्टैंड करना है. So human factor दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. अगर इंटरनल फैक्टर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी, 1 और 1 11 देखी है ना? गोविंदा था एंड संजय दत्त था, 1 और 1 11 आपने देखी थी. 1 और 1 11 पिक्चर में उनको चोरी करनी थी जैकी श्रॉफ के घर में शायद, तो उन्होंने क्या किया, उनका घर का जो सर्वेंट था उसको थोड़े पैसा वैसा देके, लालच देके घर में घुस गए. सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर. अगर आप किसी इंटरनल फैक्टर ही बेईमान है, आपका इंटरनल पर्सन ही बेईमान है, तो आपकी सिस्टम वीक होनी ही होनी है. आपका अंदर का घर का अंदर का बंदा ही वीक हो, वो ही कॉम्प्रोमाइज हो, मतलब वही चोरी करने के सपोर्ट में हो, आपकी सिस्टम ब्रेक होनी ही होनी है. जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, गूगल की ले लो, तो उसके फॉर्मल एम्प्लॉइज कैन बी अ थ्रेट, क्योंकि उनके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होंगे टू अटैक दैट सिस्टम वेरी इजीली. और यू कैन से करंट एम्प्लॉइज. Then this is the biggest issue nowadays. This is the biggest issue nowadays. आप में से जो भी बंदा अगर कंप्यूटर फील्ड को पैशन की तरह फॉलो करता होगा, तो उसने पेपर में काफी साल, या मतलब काफी नहीं, मतलब कुछ साल पहले पढ़ा था, एक रैंसमवेयर करके वायरस आया था. रैंसमवेयर, उसने सारे बैंक्स को डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया था. जब तक वो अटैकर को पैसे ना भेजे, आपके सिस्टम मतलब बैंक्स के सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे. सो दिस इज कम अंडर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर है. उसको बोलते हैं बेसिकली मैलिशियस इवेंट्स. अगर उसको आपकी सिस्टम में कोई भी अटैक्स कराने हैं, आपकी सिस्टम में कोई भी अटैक्स कराने हैं, तो वो कौन करेगा? हैकर्स करेंगे या क्रैकर्स करेंगे? ये दोनों में से कोई एक करेंगे. अब अगर देखिए किसी हैकर या क्रैकर को, हैकर को गोविंदा ले लेते हैं, क्रैकर को हम लोग संजय दत्त ले लेते हैं, जो हमने अभी एग्जांपल लिया. इन दोनों को आपके सिस्टम में, मतलब आपके घर में घुसना है, डायरेक्टली नहीं घुस पाएंगे. पहले वो आपकी सिस्टम को वीक करेंगे. तो आपकी सिस्टम में वीक करने के लिए वो आपकी सिस्टम में ये चीजें डालेंगे, दैट इज वायरस, ट्रोजन, बॉम्ब्स, रूट किट, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है. व्हाट इज दिस? हम लोग थोड़ी ही देर में देखेंगे, बट इन जनरल अगर अभी याद रखना है तो इतना याद रखिए कि वायरस इज अ मैलिशियस कोड विच ऑब्जेक्टिव इज टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई सिस्टम फाइल्स. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वायरस का? एक मैलिशियस कोड है. कोड है, प्रोग्राम है, बट कैसा है? मैलिशियस प्रोग्राम है, बैड प्रोग्राम है, जिसका इंटरनल काम क्या होगा? आपके सिस्टम के फाइल को बिगाड़ना, करप्ट करना. जैसे आपने देखा होगा कि आप पेन ड्राइव लेके आपके लैपटॉप में डालते हो, तो आपके पेन ड्राइव में सारे चीजें शॉर्टकट हो जाते हैं, आपके पीसी में सारी फोल्डर शॉर्टकट हो जाते हैं. सो बाय डिफॉल्ट आपको फॉर्मेट करना पड़ता है. अगर आपको थोड़ा वे नहीं आता कैसे उसको रिकवर करना है, तो आपको वो सब फॉर्मेट करना पड़ता है. सो ऐसे बेसिकली आपकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होती है या वीक हो जाती है. आई होप सो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए अब क्लियर है, राइट? सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ. नाउ लेट्स फोकस ऑन वर्नबिलिटीज. देखो वर्नबिलिटीज कैसे आती है हमारी सिस्टम में, वर्नबिलिटीज कैसे आती है या कैसे होती है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है. फर्स्ट थिंग, मेजर पॉइंट ये दो है, नोन या अननोन सिक्योरिटी होल्स. जब भी हम एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, बट जाने अनजाने हमने कोई भी प्रोग्राम में कुछ वीक पॉइंट छोड़ दिए होते हैं. अपने को पता हो या ना पता हो, हम लोग कभी बस छोड़ देते कि बस इतना ही होगा मुझसे. सो वो इतना ही होगा, दैट्स क्रिएट्स अ होल, दैट्स क्रिएट्स अ बग, राइट? एक फर्स्ट पॉइंट. फिर ये चीज बहुत गौर करने लायक है, हम लोग बहुत ये चीज करते हैं, इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग्स और डिफॉल्ट पासवर्ड. आज अभी मैं देख लूं, आपको मैं बोलूं, शायद इन लॉट में से भी कोई होगा जिन्होंने अपना मोबाइल लाया होगा, काफी सारे लोगों का पासवर्ड होगा 1 2 3 4.
काफी सारे लोगों का 1 2 3 4 या जय माता जी काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग कभी चेंज ही नहीं करते। जो भी मोबाइल आया उसका जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है हम कभी चेंज नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल जो हम हर बार गलती करते हैं, हम इतनी हरी में होते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी हमने तो लोग इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी हरी में होते हैं कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब वो इंस्टॉल होकर रेडी होती है ना तो वो परमिशन मांगती है। You can allow your camera, you are going to allow your memory card, you are going to allow your gallery, you are going to allow microphone, you are allowing your contact। आप सभी चीजों में allow कर देते हैं। Even you are allowing location as well। So उस एप्लीकेशन को आपका लोकेशन भी शायद नहीं चाहिए होगा या नीडेड नहीं होगा वो एप्लीकेशन को आपको रन करने के लिए, या कैमरा या कॉन्टेक्ट भी नहीं चाहिए होंगे, फिर भी हम लोग अलाउ कर देते, चलो ना एक बार खत्म हो, बार बार क्या नोटिफिकेशन आना, तो हम लोग अलाउ कर देते हैं। तो देखो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। सोचिए वो एप्लीकेशन सही, ऐसा सोच के चलते हैं, बट सोचिए अगर वो एप्लीकेशन सही ना हो, मतलब उसके जो प्रोग्रामर है उसका इंटेंशन थोड़ा बैड हो, तो क्या होगा, उस बंदे के पास आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। कैसे, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो उसका डिटेल आ गया, क्योंकि आपने उसका लोकेशन अलाउ करा था। मे बी पॉसिबल एक्सक्यूज मी सॉरी, मे बी पॉसिबल आप कैमरा 90% ऑफ रखते हो और एप्लीकेशन भी ऑफ रखते हो, बट सोचो अगर वो कैमरा यूटिलाइज कर रहा होगा तो मे बी पॉसिबल वो आपकी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा हो। आपका मेमोरी कार्ड आप उसको एक्सेस करने के लिए दे रहे हो, तो मतलब आप कौन से फाइल स्टोर करते हो, कौन सी चीजें आप स्टोर करते हो, वो उसके पास एक्सेस आ जाएंगे। सोचे हम लोग कई बार ऐसी मिस्टेक भी करते हैं कि हमारे पासबुक के पिक्स वहां पे रख देते हैं, हमारे कई पर्सनल पिक्स वहां पे रख देते हैं, मे बी पॉसिबल वो उसको एक्सेस कर रहा हो। So now you are getting my point, how we are the one who making our system vulnerable। हमारे सिस्टम में वीक पॉइंट हम खुद लाते हैं, कैसे, with some unknown holes जो प्रोग्रामर ने डाले हो। सेकेंड चीज, डिफॉल्ट सेटिंग, हम सेटिंग चेंज ही नहीं करते, डिफॉल्ट सेटिंग से ही काम चला रहे हैं, राइट। सो फॉर नाउ ऑनवर्ड्स, आज ये सेमिनार भरा है तो जाके देखो कौन सी एप्लीकेशन का यूज नहीं है, उसको पहले सर्विसेज ब्लॉक कर दो। सेटिंग में जाके ऐप, माय ऐप परमिशन होगा या माय एप्लीकेशन करके होगा, उसमें जाके परमिशन हो गए, परमिशन जिसको जो चाहिए वो वही रखो, बाकी बंद कर दो। और वो एप्लीकेशन को डेटा का यूजेस दो ही ना, डेटा का मतलब इंटरनेट का यूजेस दो ही ना, जब तक उसको जरूरत ना हो इंटरनेट का यूज दो ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। बैकग्राउंड में रन करने की जरूरत ना हो, बैकग्राउंड में रन करने का भी स्टॉप कर दो। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर सिस्टम little bit strong। You cannot say it's completely secure, but you can make something better than nothing, right? Second, misconfiguration by the admin। अगर आपने कुछ misconfiguration कर दिया, जैसे मैंने अभी अलाउ वाला एग्जांपल दिया, या सोचो कि पासवर्ड आप डिफॉल्ट रख देते हो। कई बार हम लोग, हमारा सिस्टम का लॉगिन ऐसा रखता है, एडमिन आईडी एडमिन पासवर्ड, या पासवर्ड में ही पासवर्ड डाल दिया। वी आर थिंकिंग वी आर टू स्मार्ट कि पासवर्ड में ही पासवर्ड डाल दिया। सो डोंट डू इट। अगर आज है आपका पासवर्ड ही पासवर्ड है, चेंज इट राइट अवे, चेंज कर ही दो। नेक्स्ट, उसको एक्सेस कैसे करोगे, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एज अ प्रोग्रामर सोचना है आपको, आपका पूरा प्रोग्राम एक बार डिबग करना है, जब आएगा तब आपको समझ में आएगा। पूरे प्रोग्राम को एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देखो, और उसके वीकनेस है खुद ट्राई करो, खुद 15-20 अलग अलग ट्राई करो, जिससे वो टूट सकता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है वो देखिए। अगर यू कैन फाइंड दैट वीकनेस, इट इज वेल इनफ। एंड देन अगर आपको वीकनेस मिल जाती है, देन नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई पैच। जो अपडेट्स आते हैं, जो अपग्रेड्स आते हैं, वो वही करता है, पैच अप्लाई। पैच मतलब एक थीगड़ू मारू, आपने बदा ने जो इंग्लिश में खबर, पैच मतलब थीगड़ू मारू, तो ये बग ने फिक्स करना, तो पैच मार दो, थीगड़ू मार दो, જેથી તમારી ये प्रॉब्लम रिजॉल्व થઈ જાય। એટલા માટે તમારા દરેક સોફ્ટવેરમાં અપડેટ્સ આવે છે, ઓલવેઝ અપડેટ આવે છે, રાઈટ। આઈ હોપ સો વલ્નરેબિલિટીઝ કેવી રીતે આવે છે અને કેવી રીતે સોલ્વ કરવી, તમને બંને વસ્તુ ખબર પડી ગઈ હશે। વી આર ગોઈંગ ફોરવર્ડ। नाउ वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स दी थ्रेट टू द सिक्योरिटी, मतलब अपने सिक्योरिटी के लिए डेंजर कौन क्रिएट करता है। तो ये जो नाम लिखे हैं वो है, वायरसेस ले लो, वॉर्म्स ले लो, इंट्रूडर ले लो, इनसाइडर ले लो, बहुत सारी चीजें हैं।
सो इन जनरल, इन सभी को इन जनरल बोलेंगे मैलवेयर। मैलवेयर एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? इसका, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है मैलवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, बट कैसा है? मैलिशियस, बैड प्रोग्राम है। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन करके दिया है कि वो चीज क्या है, राइट? any undesired or unauthorized piece of software running on host पे रन कर रहा हो, either to disturb the operation, उसको ऑपरेशन डिस्टर्ब करना है, और to use the host resources for its benefit, आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेस है उसको खुद को यूज करना है, खुद के एडवांटेज के लिए। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचिए किसी बंदे ने आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब जॉम्बी बना दिया। अगर जॉम्बी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि इंग्लिश में मूवी है जॉम्बी करके, अगर वो नहीं पता, हम सबको पता है, कभी किसी को बोलते हैं कि भाई किसी को भूत लग गया, हम लोग ऐसा अगर गुजराती में बोलते हैं ना, અને ભૂત વળગ્યું છે। ભૂત વળગ્યું मतलब શું? पर्सन कोई एक्स છે બટ બિહેવ કરે છે વાયના જેમ। सो अटैकर एग्जैक्टली તમારી સિસ્ટમમાં શું કરશે? व्हाट द अटैकर डज, आपकी सिस्टम में वो ट्रोजन डाल देगा, एक मैलिशियस कोड आता है जो आपके सिस्टम में डाल देगा, और आपकी सिस्टम उस बंदे के कंट्रोल में चली जाएगी। और वो बंदा क्या करेगा? आपके सिस्टम का यूज करके अटैक करेगा किसी और सिस्टम को। जब चोरी पकड़ी जाएगी आपका नाम आएगा, उस बंदे का नाम नहीं आएगा, बेनिफिट उसका होगा। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अभी बहुत देर है इस सब्जेक्ट में डाइव इन करने का, बट ये आपके अवेयरनेस के लिए एक सेमिनार रखा है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ये साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल रखे हैं ना, अगर टाइम मिले, आपको इंटरेस्ट हो, तो इसके बारे में सर्च करना, आपको मजा आएगा। ये वायरस, ये वॉर्म्स, ये स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इट्स अ काइंड ऑफ जासूस, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, स्पाई सॉफ्टवेयर, जिसको बोलेंगे स्पाईवेयर। वो क्या करेगा? अगर आपकी सिस्टम में मैंने डाल दिया तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो वो सभी मुझे नोटिफिकेशन आएंगे, मुझे मैसेज आएंगे, उसको बोलेंगे स्पाईवेयर। देन एडवेयर, हम लोग एडवेयर का तो शिकार काफी बन चुके होंगे। हम लोग मतलब डैडी लोगों को तो ज्यादा, अगर जिसके बच्चे छोटे होंगे और जो मोबाइल देते हैं तो उनका प्रॉब्लम ज्यादा होता था, पहले तो बहुत ज्यादा। कोई एप्लीकेशन चालू है, नेट चालू है, और उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो 50 रुपए 100 रुपए कटे होंगे। आपके पापा का तो 100% कटे होंगे, वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी कई बार किया हुआ है। 100 रुपीज 50 रुपीज हमारे कभी ना कभी वो एडवर्टाइज पे क्लिक करने से कटे थे। दिस इज हाउ एडवेयर इज देयर, राइट? देन रेट, रिमोट एक्सेस टूल या ट्रोजन बोलेंगे, रिमोटली सिस्टम एक्सेस करेगा। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, दिस इज फॉर योर इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये 3 चीजें देख लो, वायरस एंड वॉर्म एंड रैंसमवेयर। ये तो अटैक अभी अभी हुआ था, आपके एग्जिस्टेंस के बाद ही हुआ था, तो यू कैन सी दिस रैंसमवेयर, राइट? वी आर मूविंग फॉरवर्ड। या वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, की लॉगर। आपके लिए, आपके वहां तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब हम नए नए कंप्यूटर लाए थे उस टाइम तो थोड़ा फी भी ज्यादा था, मतलब कंप्यूटर का कॉस्ट भी ज्यादा था, और इंटरनेट बहुत महंगा था और स्लो था। तो कई बार क्या होता था, कोई फ्रेंड्स हमारे घर पे आके ईमेल चेक करने बहुत आते थे, तो वी आर यूज्ड टू डू दिस। की लॉगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दो। की लॉगर मतलब की को लॉक करेगा, स्टोर करेगा। तो सोचो हमारा कोई फ्रेंड आया, उसने ईमेल आईडी लिखा, नेक्स्ट स्टेप वो पासवर्ड ही लिखेगा, वो भी स्टोर हो जाएगा। नाउ वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू विद दैट पर्सन, राइट? दिस इज हाउ दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू अटैक समवन। नेक्स्ट, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वायरसेस, टाइप ऑफ वायरसेस, मतलब वायरसेस क्या क्या करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बोल दिया, वायरस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स अ मैलिशियस कोड, बैड प्रोग्राम है, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी सिस्टम की फाइल को डिलीट, डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई करना। तो ये टाइप ऑफ वायरसेस है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक एक लाइन ले लेंगे। पैरासिटिक वायरस, वो ऐसे काइंड ऑफ वायरस होते हैं जो एंटीवायरस से खुद को हाइड करते हैं, और सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होना। आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई भी फाइल रन करते हो, डबल क्लिक करते हो, तो वो एक्चुअली EXE नहीं होती, वो वायरस होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ दैट वायरस। नेक्स्ट इज मेमोरी रेसिडेंट वायरस, जो वायरस आपकी मेन मेमोरी में जाके इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन मतलब मॉडिफाई या डिलीट करेगा फाइल को, तो उसको मेमोरी रेसिडेंट वायरस बोलते हैं। बूट सेक्टर वायरस, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है उसको बूटिंग प्रोसेस बोलता है।
तो ये बूटिंग को जब डिस्ट्रॉय करेगा उस वायरस को बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। तभी जाके कई बार आपका पता नहीं आपने फेस किया हो नहीं किया हो, अगर आपके पापा ने किया हो। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो? यस अंकित भाई। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आवाज आ रही। Please don't turn on. Dhananjay bhai, you can give me a feedback whenever it necessary. You can give me a feedback. Please, other parents and student, please do not turn on your microphone. It's better, right? देखो, बूट सेक्टर का सबसे खतरनाक क्या हुआ होगा जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। हमारे डेस्कटॉप की बात करो बहुत साल पहले, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम लोड ही ना हो। कई बार ऐसा आता था कि ये फाइल मिसिंग है, इसलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही ना हो। तो बहुत दिक्कत के बाद हमको कहीं से वो सीडी वीडी लानी पड़ती थी और इंस्टॉल करना पड़ता था पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से। स्टील्थ वायरस वो अपने आप को एंटीवायरस से भी हाइड कर लेते हैं, इसको स्टील्थ वायरस बोलते हैं। और अब जो दो वायरसेस आ रहे हैं वो बहुत ही डेंजर है। पोलीमॉर्फिक वायरस, देखो नाम ही पोली है, पोली मतलब क्या, टेकिंग मोर देन वन फॉर्म, पोलीमॉर्फिक। तो ये वायरस डेंजरस क्यों है? क्योंकि एवरी इन्फेक्शन के बाद खुद का सिग्नेचर, खुद की आइडेंटिटी चेंज कर देता है। इसको थोड़ा फनी वे में मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने धूम पिक्चर देखा होगा, ऋतिक रोशन का धूम 2। ऋतिक का सबसे प्लस पॉइंट क्या था उस मूवी में? हर चोरी के बाद खुद का गेटअप चेंज, तो उसको आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, चोरी करते ही पकड़ सकते थे। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये उससे भी डेंजरस वायरस, मेटामॉर्फिक वायरस। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या? पूरा कोड ही चेंज कर दे, वो सिंपल सिग्नेचर नहीं, पूरा का पूरा कोड खुद को ही बदल डाले। मतलब एक चोरी की अंकित रावल, दूसरी चोरी की धनंजय भाई, नेक्स्ट चोरी की मे बी भास्कर सर, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई होप सो टाइप्स ऑफ वायरसेस आर क्लियर नाउ। Let's quickly focus on intruder. This is not of your use that much in detail. अगर मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंट्रूडर क्या है? इंट्रूडर इज अ पर्सन बेसिकली ट्राइज टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू योर सिस्टम। अगर सोचो आपके कंप्यूटर में कोई बाहर का बंदा, अनऑथोराइज्ड यूजर, जानबूझ के डेलिबरेटली आपकी सिस्टम को एक्सेस करना चाहे तो उसको बोलेंगे इंट्रूडर। वो जनरली होता है इंट्रूडर, हैकर भी बोल सकते हैं। अनऑथोराइज्डली आपकी सिस्टम को एक्सेस करते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूडर, हैकर्स भी बोल सकते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना या आपके सिस्टम के डेटा डिस्ट्रॉय करना। यस, और जो प्रोसेस वो होती है उसको बोलते हैं इंट्रूजन, राइट? तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रूडर्स। कौन हो सकता है आपके सिस्टम में घुसने वाला बंदा? तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। मास्क रेडर, वो क्या होगा? जनरली आउटसाइडर होगा, मतलब आपके हाउस का बंदा नहीं, आपके घर के बाहर का। उसको अनऑथोराइज्ड यूजर ही बोल देंगे आप। उसको मास्क रेडर नाम क्यों दिया? मास्क, बिकॉज ही वांट टू हाइड हिज आइडेंटिटी। और उसका एडवांटेज क्या होगा? वो किसी और की आइडेंटिटी यूटिलाइज करेगा। जैसे कि धनंजय भाई के घर पे घुसना है तो धनंजय भाई घर का फैमिली मेंबर बन के आएगा या उनका रिलेटिव बन के आएगा, तो यू कैन हैव अ ट्रस्ट और आप अंदर आने दोगे, राइट? मिस फिशर मतलब घर के अंदर का ही बंदा। सोचिए आपके घर का अंदर का ही बंदा जो आपके सिस्टम को अटैक कर रहा है। बट अगर मैं इसका प्रिसाइज एग्जांपल दूं, जैसे गणपत यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप इन सम मंथ एंड मैं गणपत के ही पर्सन माने जाएंगे। आप भी स्टूडेंट हो गणपत के, मैं भी हूँ गणपत का फैकल्टी। हम दोनों को ईमेल आईडी मिले हुए हैं, आपको भी मिलेंगे, मुझे मिले हुए हैं। सोचिए मैं और आप, हमारे जो गणपत का मेल आईडी हमको मिला है उसका हम लोग मिस यूज करेंगे, देन वी बिकम अ इंट्रूडर, राइट? एंड लास्ट, अगर कोई अटैकर एडमिन का कंट्रोल ले ले, एडमिन का कंट्रोल ले ले, तो उसको बोलते हैं क्लैंडस्टाइन यूजर। और ये सबसे डेंजरस काइंड ऑफ अटैकर माना जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। अगर एडमिन खुद का कंट्रोल है तो उसका मतलब क्या है? ऑडिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कैसे ऑडिट करोगे? वो ऑडिट को ही बाईपास कर लेगा। अब हम आ रहे हैं थोड़े सीरियस टॉपिक की ओर, जो हमने ऑलरेडी बहुत प्रिसाइसली डिस्कस किया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी बेसिक्स। बेसिक्स मतलब मेन चीज। अगर आपको सिक्योरिटी आज से सीखना चालू करना है तो ये 3 फंडामेंटल आपको पता ही होने चाहिए।
सो ये तीन चीजें हैं, मेन पिलर बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कॉन्फिडेंशियलिटी क्या था, डील्स विद द प्राइवेसी, डेटा को छुपा के रखना, कोई भी डेटा रीड ना कर ले, हमारा डेटा ऐसे रखना कि कोई भी रीड ना कर ले। और उसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है जो हम लोगों ने देख रखा है। अगर आपने किसी को वीडियो कॉल या व्हाट्सएप चैट किया है तो व्हाट्सएप या वीडियो कॉल में आपको ऊपर एक वर्ड लिख के आता है, आपको आपने पढ़ा है क्या केयरफुली, दिस वीडियो कॉल और चैट और वीडियो कॉल टू दिस कॉन्टेक्ट इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, ऐसा वर्ड आपने पढ़ा है किसी कई जगह। आज के बाद किसी को वीडियो कॉल करो व्हाट्सएप थ्रू या वॉइस कॉल करो, पढ़ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसा लिख के आएगा, देख लेना, राइट, एंड टू एंड इंक्रिप्शन देख लेना आज के बाद। सो इंक्रिप्शन इज अ मैकेनिज्म टू kept योर इंफॉर्मेशन प्राइवेट। मतलब व्हाट्सएप आपको क्या बोल रहा है, अगर आप किसी के साथ व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हो, आपका इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेगा, सिक्योर रहेगा। मतलब कोई अनऑथोराइज पार्टी नेटवर्क में आपका इमेज, आपके फोटो, आपका चैट चुरा नहीं सकता, उसकी गारंटी दे रहा है। सो दिस इज हाउ कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी समराइज। उसका मतलब उसको प्राइवेसी बोलते हैं, और जो अंडरलाइन किया है उसको बोलेंगे उसका मैकेनिज्म। इंक्रिप्शन यूज करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो कौन सा वे यूज करना पड़ेगा, डेटा को इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको, एकदम सिंपल एग्जांपल, सो सोचिए हम लोग अभी कभी किसी मद्रासी के घर जाए, किसी भी मद्रासी के घर पे जाए, अगर उन लोगों को हम लोग बैठे हैं और कुछ चीज डिस्कस करनी है तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, बट ऑब्वियस उनकी मदर टंग मद्रासी ही यूज करेंगे। सो उससे फायदा क्या होगा, एज अ गुजराती वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट मद्रासी, सो वो अपने लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनका डिस्कशन खत्म हो जाएगा, हमको कुछ नहीं पता होगा। सो उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक कोडेड लैंग्वेज में बात करी। सो इंक्रिप्शन का मतलब ही यही है, आपकी जो ओरिजिनल मैसेज है उसको एक कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, जिससे कोई भी दूसरा पार्टी है उसके लिए वो मैसेज मीनिंगलेस हो जाए। सो रीडिंग का क्वेश्चन ही नहीं आता। अगर इसको डिकोड करना है काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। दिस इज हाउ यू मेक योर सिस्टम प्राइवेट और योर डेटा प्राइवेट। नेक्स्ट थिंग, इंटीग्रिटी। हमने इंटीग्रिटी के बारे में क्या देखा था, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अनऑथोराइज वे में मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सो हम लोगों को रिसीवर को मतलब जिसके अकाउंट में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि आपने 15,000 भेजे हैं और वो 15,000 वेरीफाई हो रहे हैं। तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी, डेटा की मेंटेन करना, डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। और डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक हैशिंग करके मैकेनिज्म आएगा, हैशिंग। लेटर ऑन जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब ये पूरा एक अलग से कंसेप्ट आएगा, डोंट वरी, अभी से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अवेलेबिलिटी, अब डेटा की अवेलेबिलिटी रहे इसके लिए आप और मैं हमेशा ये चीज करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपी ले लेते हैं। मतलब हमारे लिए कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट तो क्या करते हैं, एक से ज्यादा जेरोक्स कॉपी करवा लेते हैं। तो सोचिए ऑनलाइन अगर आपका डेटा है कोई ऑनलाइन, तो क्या करेंगे, बैकअप्स रखेंगे। वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेंटेनिंग बैकअप्स। एंड सेकंड थिंग्स, ऑलवेज वो ऑपरेशन रनिंग रहे उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड, प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे टाइम टू टाइम, और उसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे जिससे बंद ना हो जाए। जैसे अभी मुझे किसी पेरेंट ने बोला था सर मेरे पास 97 वाला एक पीसी है, नया ला दूं क्या, क्योंकि वो कभी भी बंद हो सकता है, उनको पता है। तो क्या होगा, टाइम टू टाइम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है अगर उसकी फंक्शनलिटी ओके रखनी हो तो। दैट्स इट, इसको बोलेंगे सिक्योरिटी बेसिक्स। उसको अलग वर्ड में बोलूं तो मैं क्या है, अगर ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना है तो ये सर्विसेज है। सर्विसेज का मतलब क्या, एज अ यूजर आपको और मुझे ये चीज चाहिए, क्या चाहिए, हमारा डेटा प्राइवेट रहना चाहिए, डेटा मॉडिफाई नहीं होना चाहिए और डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। ये हमारी सर्विस है, हमारी नीड है, तो ये पूरी होनी चाहिए। और ये सर्विस को पूरी करने के लिए हमको कोई वे, कोई रास्ता, कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सिक्योरिटी मैकेनिज्म देखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है ऑथेंटिकेशन। नाउ एनीवन से मी फ्रॉम द स्टूडेंट, ऑथेंटिकेशन क्या है, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा ऑथेंटिकेशन आपके लिए क्या है, वो वर्ड का मीनिंग आपको मुझे बोलना है। ऑथेंटिकेशन क्या है, जिगर सर या भास्कर सर, क्या है, आप हेल्प करना, किसने आंसर सही दिया हो तो मुझे बोलना।
डियर स्टूडेंट्स, आपके मतलब से ऑथेंटिकेशन क्या है? आप आपका मोबाइल लाते हो तो आप यही चीज रखते हो कि आपके अलावा कोई भी वो आपका फोन यूज ना करे, उसके लिए आप क्या क्या चीजें करते हो वो आपको बोलना है। ओके, नोबडी इज गिविंग द आंसर। चलो मैं ही बोल देता हूँ। हम हमारा फोन लाएं तो पहले 3 चीज कर लेते हैं। फर्स्ट चीज, हमारे फोन का स्क्रीन जो होता है उसका लॉक कर देते हैं। 3 रास्ते हैं लॉक करने के। पासवर्ड डाल दिया, या पैटर्न डाल दिया, या फेस से रिकॉग्नाइज कर लिया, या फिंगरप्रिंट। अभी तो फिंगरप्रिंट एंड फेस बहुत ही फेमस है। तो इससे हम लोग हमारे सिस्टम को गार्ड करते हैं, हमारे मोबाइल को गार्ड करते हैं। जिससे क्या होगा, सोचिए अगर मेरा फोन है तो आप मेरा फोन डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे जब तक आपको मेरा फिंगरप्रिंट ना मिले, या फेस ना मिले, या पासवर्ड ना मिले। तो ऐसे में अपने मोबाइल का जो डेटा है, जो उसके अंदर पिक्स कॉन्टेक्ट है, वो आपसे बचा के रखूंगा। तो उसको बोलते हैं मैंने गार्ड किया मेरा मोबाइल। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं अपना फिंगरप्रिंट दे रहा हूं, मैंने अपना फिंगरप्रिंट दिया, तो मेरा फिंगरप्रिंट अंदर सिस्टम में ऑलरेडी डला हुआ है, तो मेरा फिंगरप्रिंट मैच होगा। अगर मैच हो रहा है उसका मतलब क्या, मोबाइल समझ पाएगा कि ये अंकित रावल ही है, मतलब ये मेरे फोन के लिए जेन्युइन पर्सन है, तो ही मेरा फोन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। मतलब मेरे फोन ने मुझे एज अ अंकित रावल पहचान लिया। अगर सोचिए मेरा फोन लेके आप अपना फिंगरप्रिंट डालोगे, नहीं खुलेगा, एक झटका लगेगा, एक शॉक लगेगा, क्योंकि मेरी पैटर्न और आपकी फिंगरप्रिंट की पैटर्न डिफरेंट आएंगे। तो यू आर नॉट ऑथोराइज यूजर, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड टू माई फोन, तो आप मेरा फोन यूज नहीं कर पाओगे। सो अब हम लोग एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का। बहुत बहुत बच्चे होते हैं या बहुत अच्छे एक्सपर्ट भी होते हैं, कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथोराइजेशन क्या है। तो देखो, ऑथोराइजेशन ऑलवेज डील विद द आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, वो ऑलवेज डील्स विद द आइडेंटिटी, मतलब आप कौन हो उससे डील करेगा, उसको बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। और ऑथोराइजेशन का सीधा मतलब ये है कि आप अगर कौन हो वो सिस्टम ने पहचान लिया, उसके बाद उस सिस्टम में आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कोई बच्चे स्मार्ट होते हैं, पहले स्क्रीन गार्ड का लॉक तो पापा को बोल दिया, पैटर्न पापा को बोल दी, बट गैलरी कोई कोई बच्चे एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाल के गैलरी लॉक रखते हैं। क्यों? गैलरी पापा मम्मी या दूसरे कोई फ्रेंड ना खोल पाए। तो पापा को उन्होंने या फ्रेंड को उन्होंने क्या नहीं दिया, ऑथोराइजेशन नहीं दिया, मतलब के गैलरी यूज करने की परमिशन पापा के पास नहीं है। पापा ऑथेंटिकेट है फोन यूज करने के लिए, फोन खोल सकता है, बट गैलरी यूज करने की परमिशन नहीं है, तो उसको बोलेंगे ऑथोराइजेशन। आई होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट? वी आर नॉट गोइंग इन मच डिटेल बिकॉज इट मे गेट कंफ्यूज। सो हम लोग यहां तक रखते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या क्या करते हो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, बट स्टिल आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड यूज करते हैं, राइट? हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं। अब सोचिए आपको पासवर्ड कैसा चूज करना चाहिए। डोंट गो फॉर जय माता जी 1 2 3, डोंट गो फॉर दैट, अदरवाइज ABC 1 2 3, डोंट गो फॉर दैट। तो फर्स्ट थिंग, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। वो भी कैरेक्टर कैसे, अपर केस, लोअर केस, सम स्पेशल सिंबल्स जैसे @ शब्द वगैरह अंदर होने चाहिए, तो ही आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेकेंड, कैसा पासवर्ड होना चाहिए, देखो यहाँ पे ट्रिक देख रहे हो, एक ट्रिक है, डिफिकल्ट टू गेस बट इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, गेस करना डिफिकल्ट हो बट आपके लिए याद रखना भी इजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हफ्ते बाद आप ही भूल जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो तो। अब क्या बोल रहे हैं, यूज पासवर्ड दैट कैन टाइप वेरी क्विकली, आप फटाफट टाइप कर पाओ ऐसा पासवर्ड रखना है। ऐसा नहीं कि फिर आप A दबा रहे हो, B दबा रहे हो, C दबा रहे हो, किसी को दिख रहा है तो वो इजीली पासवर्ड डाल देगा। सो पासवर्ड डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक रखी है, देखो आप कैसे पासवर्ड चूज कर सकते हो। एक फ्रेज बना लो, एक स्पेलिंग बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ कि माय नेम इज अंकित रावल। तो मैंने क्या किया, वहां का फर्स्ट कैरेक्टर M लिया,
फिर सेकंड वर्ड का सेकंड कैरेक्टर लिया ए, तो ए को मैंने रिप्लेस किया स्पेशल सिंबल एट द रेट से। देखिए एट द रेट से मैंने रिप्लेस कर दिया, है भी ए ही बट एट द रेट, तो मुझे याद रहे कि मैंने ए को एट द रेट लिया है। फिर ए के बाद आगे बढ़ो, ये क्या है, इज है, तो मैंने इज को उल्टा लिया, देखो आई को मैंने उल्टा ले लिया, एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज किया मैंने, और एस की जगह मैंने डॉलर लिया। अगेन अंकित में ए आ रहा है तो अगेन मैं एट द रेट ले रहा हूं। देन एन मैंने वैसा का वैसा लिया, के भी मैंने वैसा का वैसा लिया, जैसे ही आई आया अगेन मैंने यहाँ उल्टा यूज किया तो एक्सक्लेमेटरी यूज करूंगा। और रावल में जो आर है, काउंट कर लेना एबीसीडी में, आर है 14 नंबर की पोजीशन पे आएगा, ए को 0 लेना और एबीसीडी को आगे लिखना, तो आर 14 नंबर पे आएगा, तो #14 मतलब ये नंबर 14। तो ऐसा मैंने पासवर्ड बनाया जो मुझे याद रखने के लिए इजी होगा, क्योंकि मेरे पास ये ट्रिक है कि माय नेम इज अंकित रावल, मैंने ये फ्रेज लेके ये पासवर्ड बनाया। बट किसी और के लिए ये चीज गैस करनी बहुत ही डिफिकल्ट होगी। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब आप अपने आप को सिस्टम को प्रूव कर पाएंगे आप ही जेन्युइन यूजर हो वो सिस्टम यूज करने के, तो उसके वे कौन से है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चल रही है वो बायोमेट्रिक्स चल रही है। जैसे मैं, आपके पापा कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो उनके अटेंडेंस के लिए फिंगरप्रिंट यूज करते होंगे, राइट। जैसे कि आप अपने फोन में अभी फेक फेस से कैमरा, फ्रंट कैमरा से आपका फेस लॉक आपने डाला होगा तो फेस रिकॉग्नाइज कर देता है, तो आपका सिस्टम में आप लॉग इन कर सकते हो। आपने क्रिस पिक्चर देखा होगा जिसमें कंप्यूटर चालू करने के लिए वो उसका हाथ का पूरा प्रिंट लेता था और उसके खुद के आईज के डेटा लेता था, तो उसको बोलेंगे आइरिस स्कैन। ये डीएनए भी आप ले सकते हो। फिर शायद आपको पता हो जो रजनीकांत सर का एक पिक्चर था, आपने देखा हो, शिवाजी द बॉस, उसमें वॉइस पासवर्ड था, तो ऐसे भी आप ऑथेंटिकेट हो सकते हो। सिग्नेचर, हम लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस करवाने जाते हैं तो सिग्नेचर डिजिटली डालते हैं। एंड की स्ट्रोक का मतलब क्या, कितना फास्ट आप पासवर्ड डालते हो। अगर मैं मेरा पासवर्ड डालूंगा तो उसकी एक कांस्टेंट स्पीड होगी, अगर आप मेरा ही पासवर्ड डालोगे इवन दो योर स्पीड इज वेरी, आपकी स्पीड में कोई डिफरेंस आएगा। तो ऐसे भी आप ऑथेंटिकेशन डिनाई कर सकते हो, पासवर्ड सही हो फिर भी, ड्यू टू द की स्ट्रोक स्पीड, राइट। आई होप सो आपको ये ऑथेंटिकेशन के वे समझ में आ रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो आपको अभी व्हाट्सएप में फैसिलिटी दी जा रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी मींस इंक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो मैं आपको अभी जस्ट इंक्रिप्शन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। देखो ये प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या, हमारा ओरिजिनल मैसेज है, जैसे कि मैं हाई ले लेता हूं, राइट, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, कोई इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करेंगे। ये क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको जस्ट जनरल याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो देखो मैं आपको इंक्रिप्शन का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे देता हूँ। एच के बाद कौन सा लेटर आता है, आई आता है, एच आई, एबीसी में आई के बाद क्या आता है, आई आता है, तो मैं आई लिख दे रहा हूं। और आई के बाद क्या आ रहा है, जे। तो देखो अगर मुझे कहीं पे भी हाई भेजना है, अब मुझे कहीं पे भी हाई भेजना है तो मैं उसको कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, एक लेटर आगे ले लिया। जो भी मुझे मैसेज करना हो उसको मैं एक लेटर आगे ले रहा हूं। जैसे एक लेटर आगे का मतलब क्या, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मुझे ए भेजना है तो मैं ए नहीं भेजूंगा, बी भेजूंगा। और अगर मुझे सी भेजना है तो मैं सी नहीं भेजूंगा, मैं डी भेजूंगा। एक लेटर आगे का भेजना है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, मतलब के ओरिजिनल मैसेज। दिस इज कॉल्ड कोडेड मैसेज, मींस के साइफर टेक्स्ट। और हमने की क्या ली, ऑलवेज +1 करना है। क्या करना है, ऑलवेज हम लोग +1 करेंगे, वो हमारी की हो जाएंगे। देखो इंक्रिप्शन क्या हो गया, इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसलेट योर प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट, और इन अनदर वर्ड encryption is a process that translate your original message into the coded message, उसको बोलेंगे इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन होगा सेंडर के साइड पे, जैसे हाई आपने मुझे भेजा तो आपके साइड पे इंक्रिप्शन प्रोसेस होगा, मेरे साइड पे उल्टा होगा, मुझे मैसेज रिसीव करना है तो मेरे साइड पे उल्टा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डिक्रिप्शन प्रोसेस। वही की का यूज करेंगे बट प्रोसेस उल्टा होगा। प्रोसेस उल्टा का मतलब क्या, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, -1, तो मैं एच को एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा तो आई का एक स्टेप पीछे क्या होगा, एच होगा।
तो मैं इसको एच कंसीडर करूंगा, और ये जे है तो जे को भी एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा, जे का एक स्टेप आगे क्या आएगा, आई आएगा। तो इस हिसाब से मेरे मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप में हाई दिखेगा। ये बहुत बेसिक मेथड मैंने समझाई है, व्हाट्सएप ये यूज नहीं करेगा, व्हाट्सएप बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम यूज करेगा। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, एक ओरिजिनल मैसेज को कोडेड मैसेज में कन्वर्ट करना, वो सेंडर साइड की प्रोसेस है जिसको हम इंक्रिप्शन बोलेंगे, और रिसीवर साइड पे उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या, डिक्रिप्शन होगा, साइफर टेक्स्ट होगी, मतलब कि कोडेड मैसेज होगा, हम लोग ओरिजिनल मैसेज रिकवर करेंगे। This is how your process works or looks like, right? I hope so. There is no doubt. This is my time to deliver some session in front of you. It is a wonderful experience. आपने बहुत शांति से मुझे सुना। I hope so. ये लेक्चर आपके लिए बहुत वर्दी और बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा। Now, if you have any query, you can ask. And before leaving, we have a certain procedure that we need to follow. Yeah, you can give your feedback. You can ask your question one by turning on your microphone. But before that, let me just give you one link. मेरी screen आपको दिख रही होगी. Thank you so much for the warm response. I am very happy that you are getting whatever I am conveying. देखो मैं अभी चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूँ, ये लिंक को कॉपी कर लो या क्लिक कर लो अभी के अभी। क्लिक करने से क्या होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको। कॉपी करने से आपको ये फॉर्म खुलेगा। ये एक फीडबैक फॉर्म हमने बनाया है जिसमें आप आपका पूरा नाम डालना, आपका व्हाट्सएप नंबर डालना, वेबिनार का टाइटल, नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स, और आगे आपसे डिटेल जो भी मतलब फीडबैक मांगेंगे वो फीडबैक दे देना है आपको, जिससे अगर मैं शायद आपको सर्टिफिकेट देना चाहूँ तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे पाऊँ। I hope so you are getting my point, whatever I am trying to convey. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो you can. ओके, अगर नहीं है तो प्लीज फॉर लास्ट मोमेंट हम लोग सारे अपने वेब कैम ऑन कर लेंगे। हम लोग सारे अपने, व्हाट इज वॉर्म? ओके ओके, नाइस क्वेश्चन, व्हाट इज वॉर्म? सो अगर बेटा आप वायरस को समझे हैं, अगर आप वायरस को समझे तो मैंने वायरस को क्या बोला था, वायरस इज अ मैलिशियस कोड, जिसको क्या टारगेट क्या था, उसका टारगेट ये था कि उसको क्या करना था, आपके सिस्टम के फाइल डिलीट करने थे, डिस्ट्रॉय करने थे या मॉडिफाई करने थे। बट जो वायरस होता है ना, उसको आपके सिस्टम में अफेक्ट करने के लिए आपको उसको ओपन करना जरूरी है। मतलब सिंपल एग्जांपल दूं तो आपके पेनड्राइव में वायरस होगी और आप वो वायरस वाली पेनड्राइव आपके सिस्टम में डालोगे ना, तो ही आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द वॉर्म इज दिस कि वॉर्म एक बार नेटवर्क में से भी आपके पीसी में आ गया, वो ऑटोमेटिकली अपनी कॉपी बनाता ही जाएगा, जिससे प्रॉब्लम क्या होगा, वो ज्यादा डेंजरस होगा और आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। जिगर भाई, आई एम ऑल्सो टेकिंग स्क्रीनशॉट, बट आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग यू, आप भी एक पोर्ट्रेट मोड में एक ले लेने ना पूरा फोटो। ओके अंकित भाई। आई होप सो हम सभी का अच्छा है। Yeah, just a minute, I am taking screenshot. Yeah. અંકિત ભાઈ તમે લઈ લેજો સ્ક્રીનશોટ કરકે મારે લેપટોપ બંધ કરી મોબાઈલમાં ટ્રાન્સફર કરી દેજો હા. No problem sir, no problem, ખાલી તમે પણ લઈ લેજો, તમે પણ લઈ લેજો. I am also taking another snap as well. ओके, सो फीडबैक जेन्युइन दे रहा है कि जिससे हम आगे ऐसे ही कोई सेमिनार आपके सामने प्रेजेंट कर पाए अच्छे से, जिसको आपको भी मजा आए और हमको डिलीवर करने में भी मजा आए। जिगर भाई, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? हाँ अंकित भाई, यस। ओके ओके, सो ऑन दिस नोट, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट और आपने वो लिंक भी कॉपी कर लिया है तो यू कैन लीव। ओके सर। ओके ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ फीडबैक। वो फॉर्म फिलअप करना मत भूलना।
Ankit bhai, I am also leave. Okay, you can, sir. You can. Okay, thank you. Okay, take care and you can start leaving. हाँ, आप leave कर सकते हो.